Hello students, welcome to my channel Study Point. Today we will study chapter number 14 substance in common use of class 9 state board. Okay, 14th chapter of science 1. So let's study. Okay, substance in common use. In our day-to-day life we use many substances, right? What are the important substances that we use in our day-to-day life? For what purpose do we use them? We use toothpaste, we use soap to take bath and clean clothes, we use salt to give salty taste to food, right? So all these chemical substances can be categorized into five categories. Okay, which are these categories? Okay, we have acids, we have base, we have salt, we have metals, and we have non-metal. Can you tell me name of a particular acid? Yes, HCl. Name of base? NaOH. Name of salt? NaCl. Name of metal? Na. Name of non-metal? Chlorine. So here you can see that acid will always contain H ion. H cation will always be present in acid. OH anion will always be present in base. And salt does not contain neither H positive nor OH negative. इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों आपको नहीं मिलेगा. एंड जो मेटल्स होते हैं मेटल्स दे आर मोस्टली सॉलिड, डक्टाइल, मेलिएबल एंड they conduct electricity and they are solid. They are in solid state. Here in non-metals, you will find gaseous. You will find gases and solid, and these are neither ductile nor maneuver, neither they are good conductor of heat and electricity. You have been learning this stuff since class 7th 8th, right? You all know metals and non-metals, salt, base, acid. So we can categorize the substances that we use in our day-to-day life into acid, base, salt, metal, and non-metal. Let's move ahead. Now we have been given some substances here: table salt, soap, toothpaste, baking soda, water, curd, milk, alum, iron, sulfur, washing powder. We have to categorize them as acid, base, salt, metals, and non-metal. So see, milk and curd contain lactic acid, so therefore they are acidic. Toothpaste, baking soda, washing powder, they are basic in nature, so they are base. Table salt and alum. Alum is turti. Okay, they are salt. Iron is metal, and sulfur is non-metal. But there one thing is left here, and that is water. What is water? Water is neither acid nor base nor salt, because salt must not contain H positive and OH negative, right? But water contains H positive and OH negative. This is the formula of water. It contains OH positive and OH negative. Therefore, water is not salt also. It is a different thing. Water is a neutral compound. Okay, it is a neutral compound. Now let's move ahead. Now, what makes substance acid, basic or salt? कैसे हम बताएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेसिक है, सॉल्ट है? कैसे बताएंगे? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बताएंगे. देखिए, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर H पॉजिटिव कटायन प्रेजेंट है तो एसिड है, OH नेगेटिव अनायन प्रेजेंट है तो बेसिक है, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों नहीं है, और दूसरे H पॉजिटिव OH नेगेटिव छोड़ के दूसरे कोई आयन्स और कटायंस और अनायंस है जो कि सिमिलर टाइप के है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट. जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें सिर्फ Na पॉजिटिव के कटायन मिलेंगे और Cl नेगेटिव के अनायन मिलेंगे, दूसरा कोई कटायन अनायन इनमें मिलेगा नहीं, ये दो ही मिलेंगे. तो ये क्या है? NaCl, ये एक सिंपल सॉल्ट है. NaCl इज अ सिंपल सॉल्ट. उसके बाद अब सिर्फ NaCl ही सॉल्ट होता है या नहीं? NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट होता है. ओके, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो सॉल्ट, magnesium bromide is also salt, and this type of salts are found in ocean and seas. So oceans and sea are rich source of salt. तो देखिए यहाँ पे हमको एक टेबल फिल करना है. क्या कर बताया? देखिए, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब सॉल्ट. कुछ सॉल्ट्स के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर कीजिए एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन इट. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर इन इट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट लिया है? यहाँ पे हमने क्या लिया है? व्हाट वी हैव टेकन हियर? हियर वी हैव टेकन
टेबल सॉल्ट इज कलरलेस। ओके। सोप इज ऑल्सो कलरलेस। सोप का कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता, जिस कलर में उसको हम मिक्स करेंगे उस कलर का हो जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो कलरलेस। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कलरलेस। व्हाइट कलर का होता है वैसे तो, पर यहाँ पे आप कलरलेस भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि व्हाइट और कलरलेस यहाँ पे हम सिमिलर हिसाब से ले रहे हैं। इट इज ऑल्सो कलरलेस। एंड देन वी हैव प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज व्हाइट इन कलर। क्या करना है, इनका ये जो मटेरियल यहाँ पर दिए है इस लिस्ट में, यहाँ पे ये मटेरियल्स का आपको यू हैव टू प्रिपेयर इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड you have to add universal indicator in it. What is meant by universal indicator? Let's see. Add this thing here. Universal indicator. What is universal indicator? Universal indicator is a chemical substance जिसका एसिड में डिफरेंट कलर होगा और बेस में कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, उसमें उसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसमें ऐसा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डालना है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद में आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपको इस तरीके की कीयर स्केल मिलेंगी। ये एक पेपर की स्ट्रिप होती है, इस पे 1 to 14 तक नंबर्स होते हैं और हर नंबर क्या करता है, कलर को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर इज दैट, क्या आई विल एक्सप्लेन यू। अब क्या करना है, आपको बीकर में ये सब इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है। उसमें बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें ये पीएच पेपर आपको क्या करना है, इमर्स करना है। उसके बाद में ये जो पीएच पेपर है आपको इस तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रिप के बाजू में रखना है। और ये जो पीएच पेपर का जो कलर है, अगर वो सपोज ग्रीन आता है, एग्जैक्टली ग्रीन आता है, इसके साथ 7 नंबर के साथ मैच होता है, तो पीएच जो है हमारे सॉल्यूशन का वो कितना है, 7 है। तो देखो यहाँ पे टेबल सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट, ये भी टेबल सॉल्ट जो है उसका पीएच 7 है, तो उसको हमने क्या बोला, इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ये क्या है, न्यूट्रल है। ओके। उसी तरीके से इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक है। अब सोप का हम देखते हैं कि सोप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे किस तरीके का कलर दिखाएगा, व्हाट काइंड ऑफ कलर द सोप। तो soap will show greenish blue color. Okay. Soap will show, okay, soap will show greenish ब्लू कलर। इसका ग्रीनिश ब्लू कलर रहेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का सोप के लिए। वॉशिंग सोडा के लिए पर्पल कलर होगा, इस तरीके से पर्पल। ओके। पर्पल के बाद में यहाँ पे वी हैव ब्लू कलर, हियर वी हैव ब्लू कलर, एंड हियर वी हैव ग्रीन कलर। सो देखिए ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसका हर सॉल्यूशन में क्या है, कलर डिफरेंट है। कलर क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका पीएच क्या है, डिफरेंट है। देखिए पीएच 7 से इस तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब जो अगर पीएच 1 है तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, 2 है तो उससे कम एसिडिक है, 3 है तो उससे कम एसिडिक है, और 7 है तो न्यूट्रल है। और जैसे हम 7 से इस तरफ जाते हैं, राइट की तरफ, तो क्या होता है, बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब जिसका 14 रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा, और जिसका 8 रहेगा वो क्या रहेगा, वीकेस्ट बेस रहेगा। ओके। तो देखिए इनका पीएच हम अभी लिख लेते हैं। इसका पीएच 7 है, इसका जो पीएच है इट इज 7.5 to 9। सो इट इज बेसिक, ये क्या है, बेसिक है। ओके। इसका जो पीएच है इट इज 11, अगेन इट इज बेसिक। अगेन इसका जो पीएच है इट इज 8.5, so it is also basic। अगेन इसका भी 8.5 है, इट इज ऑल्सो बेसिक। और इसका जो पीएच आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इट इज 7, सो इट इज न्यूट्रल। ये क्या होगा,
न्यूट्रल होगा। वही देखिए, अगर मैं आपको पूछूं वॉशिंग सोडा ज्यादा बेसिक है या बेकिंग सोडा ज्यादा बेसिक है, तो आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए, वॉशिंग सोडा ज्यादा बेसिक है या बेकिंग सोडा ज्यादा बेसिक है? तो दोनों बेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो होगा हमारा ये 11 नंबर का जो है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस विल बी दिस 11, दिस थिंग हियर, क्योंकि इसका पीएच क्या है, 14 के ज्यादा क्लोज है। जितना ज्यादा 14 के क्लोज रहेगा पीएच, उतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और जितना ज्यादा 1 के क्लोज रहेगा पीएच, उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अभी देखिए सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ डज सॉल्ट्स आर फॉर्म। हाउ डज सॉल्ट्स आर फॉर्म। तो सॉल्ट जो है एक रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर दो एसिड, एक एसिड और एक बेस, अगर एक एसिड प्लस एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, राइट। हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, ठीक है। तो हम देखिए सॉल्ट भी क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, सॉल्ट भी क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। सभी सॉल्ट का पीएच 7 होगा क्या? नहीं, कुछ सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, उनको हम बेसिक बोलेंगे। कुछ सॉल्ट ऐसे जिनका पीएच बहुत कम होगा, दे हैव पीएच वेरी लेस देन 7, तो उनको हम एसिडिक सॉल्ट्स बोलेंगे। तो ये एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, हाउ डज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स फॉर्म, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। नाउ वॉच क्लोज। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, उसी तरह वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। मतलब देखिए एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूँ। अगर बराबरी की लड़ाई हो तो उसमें किसी की जीत नहीं होती है, क्योंकि दोनों जो पक्ष होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पक्ष को स्ट्रांग रखे और दूसरे को वीक रखे, जैसे हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव डिड हियर इज दैट हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, तो इससे जो बनेगा वो सॉल्ट वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कि एसिड जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर हम वीक बेस लेते, वीक एसिड लेते और स्ट्रॉन्ग बेस लेते, तो उससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन होगा। और बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगा। ओके, और अगर दोनों की स्ट्रेंथ जैसी है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन न्यूट्रल सॉल्ट विल बी फॉर्म। ये डायग्राम को अच्छे से समझ लो आप। ओके, लेट्स मूव अहेड। देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, हमारा खाने का नमक, सॉल्ट, विच वी यूज टू मेक फूड सॉल्टी। ओके, सोडियम क्लोराइड, its pH is 7, its molecular formula is NaOH, and it is formed by neutralization reaction between HCl and NaOH। HCl और NaOH के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, और उसी से क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है। जैसे कि देखिए ये NaCl है, वे फॉर्म कैसे होता है, हाउ डज NaCl गेट फॉर्म। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपस में रिएक्ट कर लेते, बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे NaCl फॉर्म होता है, और जो वाटर है वो हमको सेपरेट मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये हमको यहाँ पे क्या मिला, सॉल्ट मिला। कैसे मिला, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की क्या किया है, यहाँ पे रिएक्शन की है, उससे हमको ये न्यूट्रल सॉल्ट मिला है, जिसका पीएच कितना है, पीएच इसका है 7। ओके, इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से इसको हम तो प्रिपेयर करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो देखिए सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है। कलरलेस है सॉल्ट का, वैसे तो व्हाइट कलर होता है, मगर यहाँ पे आप उसको कलरलेस भी कह सकते हैं। ओके, व्हाइट कलर कलरलेस के इसमें आता है। उसके बाद में क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। अब देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है और आयोनिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा समझ लेते हैं हम। क्रिस्टलाइन, ओके, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मीन्स व्हाट, कि क्रिस्टलाइन मतलब इसका जो पार्टिकल होगा, क्रिस्टलाइन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है,
डेफिनेट शेप होता है, डेफिनाइट जियोमेट्रिकल शेप होता है। अरे डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी क्यों होता है? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि इसमें के जो पार्टिकल्स है उसकी अरेंजमेंट का रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनएस, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, Na है तो Na के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा? Cl। Na है तो Na के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा? Cl। यहाँ पे Na के बाद में कौन सा आएगा? Cl। यहाँ पे कौन सा आएगा? Na। यहाँ पे कौन सा आएगा? Cl। यहाँ पे कौन सा आएगा? Na। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक पैटर्न है एटम्स के अरेंजमेंट का इसके पार्टिकल्स में। तो इसीलिए ये क्रिस्टलाइन है, इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और इसका क्या होता है? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और एटम्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है अरेंज होने का। ओके, इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता, देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या है? व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जैसे कि देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, यू विल टेक वन एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 डॉट 10H2O। देखिए इसमें ये जो 10H2O दिख रहा है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगर हम इसको हिट करें और ये वाटर इवेपोरेट हो जाए और ये सिर्फ Na2CO3 हो जाए तो पाउडर के फॉर्म में दिखेंगे हमको। इसके पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। तो इसके पार्टिकल्स का कोई ज्योमेट्रिकल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है तो ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इस सॉल्ट का क्या है? कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें सोडियम क्लोराइड का, इट इज NaCl। तो NaCl में कहीं भी आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिखता, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नहीं होता, फिर भी ये क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ओके, ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ओके, नाउ इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड इट गिव्स सॉल्टी टेस्ट। ओके, न्यूट्रल होता है, सॉल्टी टेस्ट देता है, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, न्यूट्रल एंड सॉल्टी टू टेस्ट, ये भी पॉइंट हो गया हमारा, ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद में ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में देखिए क्या कहा है, आपको एक बीकर लेना है। बीकर जो है इसमें एक्वियस सॉल्यूशन आपने लिया NaCl का। NaCl का क्या लिया आपने? इसमें एक्वियस सॉल्यूशन लिया। तो इस सॉल्यूशन में 25% अगर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है और बाकी जो है वो वाटर है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हैं इस तरीके से, एक मिनट में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से बीकर है, ये बीकर में क्या है? वो हमने ब्राइन लिया है, वी हैव टेकन ब्राइन हियर। और अगर हम इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स डाल दें, ओके, इस तरीके से हम क्या कर दें? इसमें इलेक्ट्रोड डाल दें। और ये जो इलेक्ट्रोड है हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो ये निगेटिव। अब देखिए इसके तरफ कैटायन यानी कैटायन अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या है? कैथोड, दिस इज कैथोड। और इसकी तरफ अनायन अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या है? एनोड। ओके, एक है कैथोड, एक है एनोड। और इसमें हमने क्या लिया है? NaCl हमने इसमें लेके रखा है। ओके, और जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो देखिए क्या होगा? NaCl प्लस H2O एरो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस जो है वो क्या होंगी? रिलीज होगी। ओके, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इसमें क्या होंगे? रिलीज होने वाली है। अभी देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? इसमें सोडियम दोनों तरफ वन है, वन है। क्लोरीन यहाँ पे टू है तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए।
ऑक्सीजन कितने दो है यहाँ पे, ऑक्सीजन एक ही है, और हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, चार ऑक्सीजन है। तो एक काम करो, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके की रिएक्शन इसमें होगी। तो देखिए हाइड्रोजन के जो आयन्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन के जो आयन्स है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो क्लोरीन जो है वो दे इट विल बी इवॉल्व एट एनोड, एनोड पे क्या इवॉल्व होगी, क्लोरीन। और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे इवॉल्व होंगी, कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ इवॉल्व होंगी, कैथोड पे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। ओके, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। देखिए क्या कहा है, कैथोड विद क्लोरीन गैस, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होंगी, क्लोरीन गैस रिलीज होंगी एट एनोड, एंड देन हाइड्रोजन गैस, सॉरी, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होंगी, और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे रिलीज होंगी। ओके, these are two important points, let me highlight them. Hydrogen gas, okay. Okay, we have moved to next slide. Let me take highlighter. These are two, इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड की तरफ मूव होंगे, और क्लोरीन ये निगेटिवली चार्ज होती है, क्लोरीन के आयंस, तो वो एनोड की तरफ मूव होकर क्या बनेंगे, वहां पे क्लोरीन गैस रिलीज होंगी। ओके, रिमेम्बर दिस टू पॉइंट्स। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और हमको बेस मिलता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मोल्ड मेल्ट हो जाता है NaCl, और हमको फ्यूज सॉल्ट मिलता है। व्हाट वी गेट फ्यूज सॉल्ट। फ्यूज स्टेट बोलते हैं, नॉट सॉल्ट, फ्यूज स्टेट मतलब जो मोल्टन NaCl होता है उसको फ्यूज्ड NaCl भी कहते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड NaCl। उसका पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 800 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। ओके, और ये जो फ्यूज्ड NaCl है, इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, मतलब आपने बीकर लिया, बीकर में ये मेल्टेड क्या है, NaCl है, और इसमें आपने क्या किए, इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड डाले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो लिक्विड सोडियम है वो इस कैथोड की तरफ मूव होगा। ओके, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज होंगी, और ये जो कैथोड है यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड सोडियम जो है वो डिपॉजिट होगा। ओके, सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, सॉल्ट सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सी से ही मिलता है, रॉक से भी आपको सी मिलता है। हाइलाइट नाम का मिनरल होता है, हिमालयन रॉक नाम का मिनरल होता है, जिससे आपको सॉल्ट मिलता है, जो डिसीज को क्यूर करने के लिए यूज करते हैं। और ब्राइन का मैंने आपको बताया था 25 सोल्यूशन जो होता है सॉल्ट का, सेचुरेटेड सोल्यूशन, उसको ब्राइन बोलते हैं। अगर ये ब्राइन को आपने इवेपोरेट किया और इसका 1/5 पोर्शन इवेपोरेट हो गया, तो क्या होता है, ये जो डिसॉल्व सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और आप उसको पानी में से सेपरेट कर सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर में आपने ब्राइन लिया जिसमें क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट के डिसॉल्व स्टेट में सॉल्ट के पार्टिकल है, और आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो एक बर्नर पे। तो क्या होगा, वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, और इसके जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो क्या रह जाएंगे, इसमें रह जाएंगे, और वाटर जो H2O वो स्टीम बन के इवेपोरेट। ये इनको है भी कहना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, here we have sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate means baking soda. बी प्रेजेंट है उसमें। कुछ लोग हमेशा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा लिखते हैं, और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कैसे रहना, उसके एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें बाय है, बाय मतलब बेकिंग सोडा में भी बाय है, उसमें भी बाय है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा। आपको क्या बोलना है, उसको बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा। और अगर बाइकार्बोनेट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। इसको सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, जो भज है उसको क्रिस्पी बनाता है। उसके बाद में नॉन क्रिस्टलाइन है, अभी तक हम क्रिस्टलाइन देख रहे थे, ये कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन है, इसके पार्टिकल्स का कोई भी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। ओके। उसके बाद में देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और ये जो केक है उसको कैसा बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, क्योंकि जब आप इसके बैटर में आप ये बेकिंग सोडा डालते हो और उसके बाद में आप उसको हीट करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो गैस स्केप करती है। और स्केप करते समय क्या करती है, जो ब्रेड है या जो केक है उसको क्या करती है, स्पॉन्जी बना देती है। ओके। प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसकी बताइए, प्रॉपर्टीज जल्दी से जल्दी फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके। property का NaOH react with moist litmus paper and red litmus paper turn blue। red litmus paper जो है वो ब्लू हो जाता है, so it is basic in nature। आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, BRA ब्लू टर्न्स रेड मतलब एसिडिक, BRA एसिडिक, RBB मतलब रेड टर्न्स ब्लू मींस बेसिक, BRA RBB रेड ब्लू में बदल गया मतलब बेसिक। और अगर ब्लू रेड में बदल गया होता तो क्या होता, एसिडिक होता। ब्लू रेड में बदल गया होता तो क्या होता, एसिडिक होता। लेकिन ये ब्लू रेड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, रेड ब्लू में हुआ है, तो ये क्या है, बेसिक है। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट टेक्निक है, BRA और RBB। ओके। BRA मतलब क्या, ब्लू टर्न्स रेड एसिडिक, और RBB मतलब क्या, रेड टर्न्स ब्लू बेसिक। तो ये अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है तो ये क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। ब्रेड और केक ढोकला बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके। उसके बाद में अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि अगर आपके पेट में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो वो एसिड के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लोगे, बेस लोगे। और बेस लेने के बाद में आपके पेट में एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद में वो एसिड और बेस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्ट वाटर, और ऑटोमेटिकली आपके पेट में जो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा या कम हो जाएगा। ओके। उसके बाद NaOH CO3 फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं CO2 प्रोड्यूस करने के लिए, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। उसी तरह बेकिंग सोडा जो है वो ओवंस को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। ओके। लेट्स मूव टुवर्ड द न्यू स्लाइड। Okay, let's see what we have here. तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर। ओके। ब्लीच करना का मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लीच, ब्लीच मींस डीकलराइज करना। और क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का अच्छा सोर्स होता है, क्लोरीन के ऑर्डर से, क्लोरीन के ऑर्डर से क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो है वो किल होते हैं, माइक्रोब्स जो है वो किल होते हैं या दूर भागते हैं, इसलिए इसको वाटर डिसइंफेक्टेंट बोल के भी यूज किया जाता है। ओके। देखिए यहाँ पे हमारे घर में रेनी सीजन में नल से जो पानी आता है उसका कभी कभी स्मेल बहुत हमको इरिटेट करता है, तो ये स्मेल किसका होता है, क्लोरीन गैस का होता है। क्लोरीन गैस उसमें कहाँ से आया है, इस ब्लीचिंग पाउडर में से। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ से वो क्लोरीन गैस जो है उसमें आया है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और इस क्लोरीन गैस को हम माइक्रोब्स किल करने के लिए वाटर में यूज कर सकते हैं। इसलिए स्विमिंग पूल में या जो टैप वाटर होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। आप बोलेंगे सर क्लोरीन से अगर वाटर डिसइंफेक्टेंट होता है तो क्लोरीन गैस क्यों ऐड करते हैं पानी में। देखिए क्लोरीन गैस है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ये पाउडर है तो उसको हम ठीक से कन्वीनियंटली स्टोर करके रख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हम क्लोरीन ऐड करते हुए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं जो क्लोरीन रिलीज करता है, और ये क्या करता है, वाटर को डिसइंफेक्टेड करता है। एंड इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, जो घटा है उसको अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, उसको क्या करता है, डीकलराइज करता है। ओके। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग एजेंट के तरफ पे भी यूज करते हैं। ओके। उसके बाद में देखो क्या कहा है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड देता है, और क्या देता है, वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से सेपरेट हो जाता है। ओके। तो ये रिएक्शन अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ओके। लेट्स मूव अहेड।
प्रॉपर्टीज क्या क्या है ब्लीचिंग पाउडर की वो एक बार देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है इट इज येलोइश व्हाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस। येलोइश व्हाइट कलर का होता है और कैसा होता है, सॉलिड होता है। ओके, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। केमिकल नेम इज, एक मिनट, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ओके, उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है और वो ऑर्डर की वजह से माइक्रोब्स दूर भागते हैं। वाटर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं और स्विमिंग पूल्स में और टैप वाटर में यूज करते हैं। क्लोथ को ब्लीच करने के लिए, डीकलराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉश करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग रोड साइड एंड गार्बेज साइड। तो सस्ते के आजू बाजू अगर गार्बेज साइड है या कचरा पड़ा है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। और देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर रैपिडली रिएक्ट करता है और Cl2 गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए उसकी रिएक्शन हमको दिखाई हुई है। ओके, देन देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो क्या करता है, स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। इसकी रिएक्शन हमें नहीं दी है बट हम इसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको दिया है यहाँ पे। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 react slowly, not rapidly with carbon dioxide to give CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 इस तरीके से हमको यहाँ पर मिलते हैं। ओके, कि काफी इजी रिएक्शन था, बैलेंस रिएक्शन है। ओके, लेट्स मूव अहेड। देन वी हैव वॉशिंग सोडा। अभी तक हम बेकिंग सोडा देखे, अभी वॉशिंग सोडा भी देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं बोलते। और इसमें एक हाइड्रोजन जो है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट में था, इसमें वो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम क्या है, सिंपली Na2CO3.H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर आप इसको हीट कर दे, इफ यू हीट इट, तो ये क्या करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और इसका व्हाइट पाउडर बन जाता है। ओके, और ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर इसका बन जाता है और इसके व्हाइट पाउडर के क्रिस्टल्स की तरह शेप नहीं होते। ओके, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इसका एक क्रिस्टल का जैसा इसको शेप आता है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप आता है। वही देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आप पानी लीजिए, देखिए हार्ड वाटर लीजिए, हार्ड वाटर में आप क्या ऐड कीजिए, सोप ऐड कीजिए, तो बिल्कुल भी लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा, झाग प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, वो जो हार्ड वाटर है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो ये आपने हार्ड वाटर लिया, here you have taken hard water। इसमें आपने क्या किया, वो सोडा ऐड किया, वॉशिंग सोडा Na2CO3। Na2CO3 आपने इसमें ऐड कर देने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स और जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और NaCl बनेगा। और ये दोनों सॉलिड सब्सटेंस होते हैं तो ये नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से ये नीचे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ऊपर का पानी आप रिमूव कर लीजिए। तो ये जो हार्ड वाटर है, ये जो ऊपर का पानी आपने रिमूव कर लिया एक डिफरेंट बीकर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर। ओके, तो इस तरीके से आप हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में एक ही डिफरेंस है, मिनरल कंटेंट का। हार्ड वाटर में मिनरल कंटेंट ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट वाटर में मिनरल कंटेंट कम होते हैं। और जब आप वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर में ऐड करते हो तो वो जो वॉशिंग सोडा है, वो उसकी मिनरल कंटेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है जो कि सॉलिड होते हैं और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ऊपर सिर्फ सॉफ्ट वाटर रह जाता है जिसमें क्या होता है, मिनरल के जो कंटेंट्स है वो कम होते हैं। ओके, वही यहाँ पे बताया। Okay, let's move to next slide। ओके, देखिए क्या बताया, वॉशिंग सोडा इज व्हाइटिश कलर, ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर। कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, ऑर्डरलेस होता है।
ओके। लिटमस पेपर हैज अ ब्लू कलर इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर जो है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। तो ब्लू है मतलब बेसिक है। ब्लू है मतलब कैसा है, ये बेसिक है। हाइड्रोस्कोपिक है मतलब मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। इट इज यूज्ड मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। इसको क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं और पेट्रोल के रिफाइनिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। अभी देखिए हमको एक रिएक्शन लिखने को यहाँ पे बताइए। लेट्स सी हम लिख पाते हैं या नहीं। Na2CO3 प्लस H2SO4। इससे हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट Na2 सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, देन CO2 प्लस H2। आपको क्या करना है, रिएक्शंस आपको थोड़ा बहुत लर्न करना है और थोड़ा बहुत टेक्निक से याद में रखना है। टेक्निक किस तरीके से याद रखेंगे आप देखिए, ये जो सोडियम है वो ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये दो में से तीन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो कितने बचे, एक दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट दिए, देखिए इन सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। देखिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2O, 7H2O, 10H2O, यहाँ पे 10H2O, ये क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया क्या है कि इस सब्सटेंस के साथ में वाटर का मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इस सब्सटेंस सॉल्ट जो है, सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ वाटर्स के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और उसी की वजह से इसको एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप आता है, क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं ये सॉल्ट। तो अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इसमें से बाहर निकाल दें तो ये भी क्या हो जाएंगे, एनहाइड्रस पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या क्या बताया, एलम बताया। एलम मतलब त्रुटि। ओके, एलम मतलब क्या, त्रुटि। बोरैक्स है, इप्सम सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। ये पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, और इसका आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लर्निंग का पार्ट है, मेमोराइजेशन का पार्ट है, लेकिन इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बोरैक्स का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स, तो आपको लिखते आना चाहिए। एलम का केमिकल फॉर्मूला बताइए, इप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला बताइए, बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बताइए, सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो आपको ये जो केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर दिए हैं ये आपके लर्न होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए ये एलम का यूज कहाँ पे होता है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब आप त्रुटि को पानी में ऐड करते हैं तो पानी में जो डस्ट के पार्टिकल है वो कोएगुलेट होते हैं। कोएगुलेट मींस व्हाट, कि एक जगह वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं और हैवी हो जाते हैं और नीचे सेटल हो जाते हैं, इसलिए इसको वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बोरैक्स को डिटर्जेंट में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नेल पॉलिश वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में जो इप्सम सॉल्ट है उसको ड्राई स्किन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अगर स्किन ड्राई हो गई तो इप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं। मसल अगर सोर हो गए, मसल्स, तो उसके लिए इप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं। ओके, मसल्स अगर स्ट्रेच हो गया है तो, उसी तरह अगर कोई भी छोटा जख्म हो जाता है, स्मॉल वाउंड होता है तो इप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं। उसी तरह डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, इप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं। देन बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब जो सेवाज वाटर होता है, जो खराब पानी होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इन कॉस्टिक क्लोराइड प्लांट, अगर आपको ब्राइन सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना है, NaCl का जो सॉल्यूशन है वाटर का उसको आपको प्यूरिफाई करना है, तो उसमें भी बेरियम क्लोराइड यूज करते हैं। देन सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट कहाँ पे यूज करते हैं, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, और जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की फैक्ट्री होती है उसमें डाइंग के समय सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोप के बारे में बात करते हैं। तो सोप क्या होते हैं, सीयर, व्हाट इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होते हैं, दे आर सोडियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के। ओके, okay, sodium and magnesium salts of facility. Which chemicals are present? Which chemicals and apparatus will you see use in the laboratory for making soap? Soap के लिए हम क्या chemicals use करेंगे? तो देखिए, oil and animal fat is boiled with aqueous solution of sodium potassium hydroxide. क्या करते हैं हम? ऑयल होता है, ओके, ऑयल या फिर एनिमल फैट, ये दोनों में से एक को लेके हम क्या करेंगे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसके साथ इनको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। देन वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनसे हमको क्या मिलेगा, सी हियर आर सी ओ ओ एन ए, RCOOMG। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये CO ग्रुप है, ये आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, ये आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम के और मैग्नीशियम के, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप, इनको हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। व्हेन सोप इज मिक्स्ड विद हार्ड वाटर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर फॉर्म। जब आप सोप को हार्ड वाटर में मिक्स करते हो, जो बोरवेल से आप बनाते हो, तो इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है फैटी एसिड्स के, ये इसमें फॉर्म होते हैं। दिस बीइंग वाटर insoluble दे आर फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड इट्स व्हाई लेदर इज नॉट फॉर्म। तो देखिए, अगर आप इसको पानी में ऐड करेंगे तो लेदर प्रोड्यूस होगा, सॉफ्ट वाटर में ऐड करेंगे तो ओके। लेकिन अगर आप इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हो तो क्या होगा, ज्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये इसमें के जो मिनरल्स प्रोड्यूस होंगे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में, उससे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएंगे जो बॉटम को सेटल होगा। इसलिए ज्यादा लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा, ज्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्योंकि मिनरल कंटेंट ही कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लेदर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लेदर, लेदर मीन झाग, मोर लेदर विल बी प्रोड्यूस हियर। ओके। सोप दो तरीके के होते हैं, बाथिंग सोप होता है एक, और एक होता है हमारा वॉशिंग सोप। ठीक है, बाथिंग सोप जो प्रोड्यूस करते हैं वो हाई ग्रेड के फैट्स और ऑयल्स लेते हैं और उसका रॉ मटेरियल का तरह यूज करके बनाते हैं, और ये लो ग्रेड के फैट्स और ऑयल्स लेते हैं। मतलब इनमें कार्बन के जो एटम्स है वो ज्यादा नहीं होंगे लो ग्रेड फैट्स में, इसमें कार्बन के एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसके बाद में बाथिंग सोप जो है वो ज्यादा लेदर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस और लेदर। और ये जो है ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लेस लेदर। ओके, लेट्स मूव अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा वीडियो देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।